Good evening, everyone. Namaskar. Uh, it's an immense pleasure and honor for me to be introducing the book uh, with which I've been associated since January 2022. On 17th January, if I remember it correctly, the book released at number one bestseller. So it's a long journey with Bhupen sir. The rise of BJP is a fascinating journey of the world's largest party from its origin as Janasangh. And Sir's book with Ila Patnaik ji, a leading economist, chronicles the journey of Bharatiya Janata Party through its ideology, policy making, organizational abilities, to give a glimpse of what BJP is and why it has reached where it has reached today. It gives me immense pleasure also to let you know that Penguin Random House, the publishers of the book, got such a great response for the book right after the release that they came out with a quick edition in Hindi called Bharatiya Janata Party Ka Abhyodaya. Honorable Minister Bhupendra Yadav ji provides an insider's view of this journey with economist Ila ji, who has in particular analyzed the effect of economic policies that the party has undertaken under its regime. The rise of BJP released, as I said, on the 17th last year and has received tremendous media response. The common point highlighted by most of the media and the reviews that were carried for the book was that more than the supporters of the party, the opposition must read the book to understand what the party does right and where does it falter in order to maybe challenge them in 2024. Bhupendra ji is not only an exceptionally hardworking, dedicated party member and a minister, but also very hardworking writer, and I've seen that through the last year. And today I will request him as a writer to share his journey of writing. Today morning, he was at the Bhopal Literature Festival, and I think more than a conversation, he enjoyed questions being put to him by the audience. And that is why I thought maybe he should be in a fireside chat with all of you and maybe take questions directly from the audience and answer them. Right? Yeah. Thank you very much once again, and Namaskar Bhupendra ji, and thank you very much for gracing the occasion. नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल की सिचुएशन को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का पार्टिसिपेशन किस तरह से हम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके इस पर क्या विचार हैं और किस पे क्या क्या कार्य हो सकता है और क्या किया जा रहा है? आपका प्रश्न बहुत वैलिड प्रश्न है। हालांकि पुस्तक का विषय नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस बात में पूरी तरीके से विश्वास रखती है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए। शायद हम पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने अपने संविधान में ये लिख रखा है कि बीजेपी की जो पॉलिटिकल पोस्ट होंगी उसमें से 33% महिलाओं को ही दी जाएगी, और हम बूथ से लेकर उसको ऊपर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पूरी तरीके से पालन करते हैं। महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और अगर आपने आज का समाचार पत्र भी पढ़ा होगा तो प्रधानमंत्री जी ने जो कल देश के अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करी थी, उसमें भी उन्होंने वुमेन वर्कफोर्स को बढ़ाने की बात कही है। वुमेन पार्टिसिपेशन और वुमेन वर्कफोर्स तभी बढ़ सकती है जब कार्यस्थलों पर भी उनको उतनी ही सम्मान और सुरक्षा मिले, डिसीजन मेकिंग में वो आए। और सबसे ज़्यादा है कि वेतन से लेकर के और निर्णय प्रक्रिया तक महिलाओं का स्थान होना चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने, एज ए गवर्नमेंट के डिसीजन के रूप में हमने और प्रधानमंत्री जी की संकल्प के रूप में हमने महिला सुरक्षा के लिए काम करा है। सरकार के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए समाज की भी जिम्मेदारी है।
कोई महिला हमारे साथ काम करने आ जाती है या करती है तो हम सब जानते हैं कि हमारी भी आज बच्चियां, हमारे भी घर की महिलाएं वो भी काम पे जाती हैं। हम जैसा माहौल अपने घर में उनको देना चाहते हैं, ऐसी ही अपनी साथी महिलाओं को अपने कार्यस्थलों पर करें। और आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें तो सबसे ज़्यादा महिला पार्टिसिपेशन है, तो मुझे लगता है आपको एक आइडियल एसओपी भी तैयार करनी चाहिए पब्लिशिंग हाउस की, कि महिलाओं को कार्यस्थल पर काम करने का हम इस प्रकार से एक अच्छा माहौल तैयार करते हैं तो आपकी इंडस्ट्री बाकी के लिए भी उदाहरण बनेगी। सर, लोहिया जी के जनसंघ के समय से और आज मोदी जी के बीजेपी के समय में क्या फ़र्क आया? मुझे लगता है दीनदयाल जी कहना चाहते हैं। हाँ, सॉरी, प्रभात जी पीछे से बोल रहे हैं। हमारी यात्रा कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ है। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर दीनदयाल जी के समय में भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिस विषय के लिए बलिदान हुआ कि कश्मीर में 370 हटनी चाहिए, एक विधान एक निशान, तो अगर आज हम सत्ता में आए हैं तो हमने 370 को हटाया भी है। अगर दीनदयाल जी ने 70s में अंत्योदय का नारा दिया था, गरीब कल्याण का, तो सबसे ज़्यादा नीचे तक रिसोर्सेज गरीबों को पहुँचे, ये 8 साल के मोदी जी के शासनकाल में हमने दिखाया है। अगर हमने इस बात पे अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट किया था कि कम्युनिस्टों की जो फिलॉसफी है वर्ग संघर्ष की, उसकी जगह सहयोग और विमर्श की होनी चाहिए, तो हमने अपनी पॉलिसी में सबका साथ सबका विकास को न केवल रखा है बल्कि उसको ज़मीन पे उतार के दिखाया है। और नेशनलिस्ट होने के नाते अगर हमने कहा है कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होना चाहिए, तो जितनी भी जलवायु परिवर्तन की वार्ताएं चली हैं उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने विकासशील देशों का नेतृत्व भी किया है और G20 की प्रेसिडेंसी भी करी है। और 2 ही दिन पहले भारत ने जो इंटरनेशनली जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, वो विकासशील देश जो सबसे ज़्यादा आज वल्नरेबल है, अभी इजिप्ट में भी जो लॉस एंड डैमेजेस फंड बना था उन्हीं देशों के लिए बना था, और उनका 2 दिन पहले ही सबमिट भारत ने वर्चुअली किया है, ताकि G20 ये दुनिया के बड़े देश हैं ट्रेड की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ आनी चाहिए। तो ये जो भारत के नए प्रयास हैं, ये वही कंसिस्टेंसी विचारधारा है जो दीनदयाल जी ने शुरू करी थी और आज राजनीति के केंद्र में आके बीजेपी उसको ज़मीन पे उतार रही है। नमस्कार सर, हम आपकी पेन से अगली किताब कौन सी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एज ए लेखक मैं पूछ रहा हूँ आपको, नॉट एज ए पॉलिटिशियन। नहीं, ये प्रश्न आपने अच्छा करा है। मेरा वैसे 2 विषयों पे काम चल रहा है। हमारे नेशनलिज्म के विचारधारा के एक अच्छे विचारक हुए हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, और जितना राष्ट्रवादी लेबर मूवमेंट, किसान मूवमेंट है उन्होंने किया, और उन्होंने एक बुक लिखी थी थर्ड वे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये केवल कैपिटलिज्म और केवल कम्युनिज्म ये दुनिया की सब बातों का उत्तर नहीं दे सकते, और ये हमारा स्ट्रांगली बिलीव्स है कि थर्ड वे मतलब जिसको हम कहते हैं कि भारतीयता के आधार पे, भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पे दुनिया में नई व्यवस्थाओं की रचना की जा सकती है। और पिछले 8 सालों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग विषयों में, चाहे वो देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास करना हो, चाहे 135 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे जोर देना हो, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में समानता लाने के लिए गति शक्ति जैसा प्रोजेक्ट लाना हो, चाहे दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थशक्ति बनाने के लिए भारत को आगे बढ़ाना हो, चाहे लेबर कोड में 29 एक्ट्स को 4 कोड में परिवर्तित करना हो, चाहे देश में GST जैसा कानून लाना हो,
ये जो सारे विषय हमने आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, विकास के स्तर पर और सामाजिक टेंशन को मिटाने के स्तर पर और एक मजबूत भारत बनाने के स्तर पर करे हैं, तो उस पुस्तक और प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली से जो एक पूरे देश को विज़न आया है, उसको लेकर के मेरा काम चल रहा है। और दूसरा, इलाजी के साथ एक रिसर्च मेरा चल रहा है कि 8 साल में हमारे देश में बड़े आर्थिक परिवर्तन हुए हैं और ये देश पंचवर्षीय योजना से निकलकर अब एक नीति आयोग जैसे थिंक टैंक के माध्यम से हम एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में काम कर रहे हैं। उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट है, ये मेरे को लगता है एक बड़ा शोध का विषय है। तो पहली पुस्तक मुझे लगता है कि मई जून तक और दूसरी पुस्तक में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दोनों पुस्तकें जरूर आएंगी। आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की पीढ़ी, जो कि हम यूथ, हमारे लिए आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर बेटर हो पाए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि हमारा एक उज्जवल और सुनहरा भविष्य हो पाए? नहीं, मेरा तो मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जिसको हम कहते हैं, हमको पॉपुलेशन का जो बेनिफिट है, डेमोग्राफिक बेनिफिट, एक ये भी है कि हमारा देश एक यूथ ओरिएंटेड देश है। आज जो दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है, और मैं पिछले दिनों जब ILO में भी गया था जेनेवा में, कि स्किल गैप की समस्या है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास एजिंग पॉपुलेशन है और लोग नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास टैलेंट है और टैलेंट होने के साथ ही साथ एक भारत ने स्किल की कैपेसिटी को भी डेवलप किया है। और मेरा ये मानना है कि सरकार के द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग के विषयों को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न नियमों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भारत ने किया है कि जो नई औद्योगिक क्रांति आ रही है, जिसको हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं, आपका इंडस्ट्री भी उसमें पूरी तरीके से अब आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अभी 2 दिन पहले ही अगर आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने जो रुपी है उसको 2600 करोड़ रुपये का और आवंटन किया है। आज भारत में लगभग 54% जो हमारी इकोनॉमी डिजिटली है, वो भारत सरकार का जो रुपी है उससे पूरी तरीके से संचालित हो रही है, जो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का पूरा ट्रांजैक्शन है। तो ये जो हम एक नए विज़न के साथ चले हैं, नए स्टार्टअप के साथ चले हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अगर बने हैं तो भारत में बने हैं। तो ये सब विशेष बात को दर्शाते हैं कि हमारा जो भारत का यूथ है उसमें काम करने की इच्छा, सरकार का संकल्प, मोदी जी का विज़न और बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में G20 जैसा जो नेतृत्व है, मुझे लगता है ये जिस दिशा में की तरफ जा रहा है वो आप लोगों के अच्छे भविष्य का ही संकेत है। आपका ये मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज? नमस्कार श्री भूपेंद्र यादव जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि 2024 में ऑपोजिशन कंसोलिडेट होकर बीजेपी को कितनी फाइट देंगी? ये तो उनसे पूछना चाहिए जिसको हम फाइट देनी है उसको पूछना चाहिए। हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता एक पब्लिशर हूँ। मैंने आपकी किताब को थोड़ा बहुत देखा, भी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें बीजेपी की बढ़ाइयाँ ही हैं। कुछ कमियां भी तो होंगी बीजेपी में। मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में कुछ बोलें। वो काम मैं आपको देता हूँ, किताब पढ़ने के बाद मुझे बताना। नमस्कार सर, मेरा आपसे, लेकिन मैं आपका इंतजार करूँगा। नमस्कार सर, मेरा आपसे ये सवाल है। बाहर से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है बीजेपी एज ए पार्टी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक पर्सन के ऊपर। तो ये स्ट्रैटेजी है या हमें बाहर से देखने में लगता है, या एक्चुअली में क्या सच्चाई है? देखिए, नेतृत्व पे सबको गर्व होता है और जो नेतृत्व होता है वो सबसे आगे होता है। तो हम एक डेमोक्रेटिक रूप से चल रहे हैं, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है। और हमें तो गर्व है, एक समय जब अटल जी हमारा नेतृत्व करते थे तो अटल जी ही हमारे परिदृश्य पे हैं, आडवाणी जी एक समय नेतृत्व करते थे, और आज हमें तो
गर्व है कि हमारे नेतृत्व की धमक भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, और भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है। ये एक स्वाभाविक परिस्थिति है और मुझे लगता है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और देश दोनों को है। सर, मैं नीरज आनंद चौधरी, एक ऑथर हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये अभी आपने बुक लिखी भाजपा का अभ्युदय, तो हम सभी देख रहे हैं कि मोस्टली ये डेफिनेटली भाजपा का अभ्युदय है, क्योंकि मैं भी देश के अलग अलग कोनों में घूमता रहता हूँ। शायद 3 में से हर एक आदमी तो एटलीस्ट ज़रूर, जो चाहे वो भाजपा का सदस्य है, कार्यकर्ता है या नहीं है, लेकिन वो भाजपा का है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये भाजपा का शिखर, ये बुक कब आएगी और हम कब तक ये देख पाएंगे कि भाजपा अपने सर्वोत्तम शिखर पर है? थैंक यू। जीवन जो होता है क्षितिज की तरह होता है, जिसको हॉरिजॉन कहते हैं ना, कभी धरती और आसमान मिलते नहीं है, और इसलिए जितना भारत आगे जाएगा बीजेपी का शिखर उतना ही आएगा। बीजेपी की यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, बीजेपी की यात्रा भारत को महान बनाने के लिए है। जिस दिन आप कहोगे कि आज भारत में सबकी संपन्नता है, गरीबी का निवारण हो गया है, महिलाओं को काम करने का अधिकार है, सांस्कृतिक गौरव है, जीवन मूल्य है, मुझे लगता है भारत का शिखर भाजपा का शिखर होगा। भाजपा का अपने आप में कोई शिखर नहीं हो सकता है, भाजपा भारत के लिए है, और इसलिए भारत का शिखर करना ही भाजपा का काम है, अपना शिखर करना नहीं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, और मेरा सवाल कुछ आपकी बुक से रिलेटेड नहीं बल्कि आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं इस समय पर 2 इनिशिएटिव्स पे बहुत ज़्यादा खुद पार्टिसिपेट करता हूँ। एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन। मैं सिर्फ सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट में, मैं सिर्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं बट सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन की बात ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से पूरा सस्टेनेबिलिटी ड्राइव किया जा सकता है यूथ को, बच्चों को, और सबसे पार्टिसिपेशन लेके। और दूसरा मेरा सवाल है आपकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ता हुआ, जिसको भी मैं सस्टेनेबिलिटी ही बोलता हूं, जो मेरे लिए है मेंटल हेल्थ, जो मेरे लिए है लोगों को ये इंश्योर करना कि लोगों की मेंटल वेलनेस, लोगों की एबिलिटी टू बी मोर प्रोडक्टिव ज़्यादा हो पाए। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सस्टेनेबल जो है, सस्टेनेबल क्या है? वेस्ट ने जो लाइफस्टाइल डेवलप करी है वो कंजम्पशन बेस है, और रिसोर्सेज का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हम कह रहे हैं कि अगर ये रिसोर्स इसी तरह यूटिलाइज होते रहे तो धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ आप ऐसे भी समझिए कि भारत की आबादी 17% है, बट भारत का कार्बन एमिशन 4% है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 17% है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। तो अगर उनके पैटर्न का कंजम्पशन पूरी दुनिया करने लग जाए तो ये धरती कल ही 5 डिग्री पे चली जाएगी। सो प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में एक स्लोगन दिया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, जिसको हम कहते हैं मिशन लाइफ। अब ये मिशन लाइफ क्या है? मैं जब यूएनईपी की सेक्रेटरी जनरल एंगर एंडरसन से बात कर रहा था और मैं उनके सामने लाइफ का कंसेप्ट रख रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं आपके प्रधानमंत्री जी के विषय से एग्री हूँ, क्योंकि धरती से जो कुछ मनुष्य लेता है, क्योंकि धरती के सबसे इंटेलिजेंट आदमी तो हम ही हैं, हम उसको देते क्या हैं? हम धरती को गार्बेज वापस देते हैं। आप एनर्जी निकालते हैं, आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, आप चीज़ें यूज़ करते हैं। सो अब दुनिया में एक नया पैटर्न चल रहा है, और G20 में भी एक विषय है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज़, रीसाइकिल, रीप्रोड्यूस। क्योंकि जितनी भी चीज़ें जिसको हम रीयूज़, रीसाइकिल और रीप्रोड्यूस करेंगे, तभी हम धरती के रिसोर्सेज को और मनुष्य की आवश्यकताओं को सस्टेन कर पाएंगे। मिशन लाइफ जो है वो पर्टिकुलर बिहेवियरल चेंज है, और जो नेट जीरो है वो नेशंस का कमिटमेंट है, और यूएनएफसीसी की जो है वो दुनिया का कमिटमेंट है।
लेकिन उसके लिए दुनिया को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो हिस्टोरिकल एमिशन किया है उनको एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंपनसेट करना होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना होगा मिटिगेशन मेजर्स में और अडेप्टेशन मेजर्स में। इसलिए जो सस्टेनेबिलिटी है ये केवल एजुकेशन का विषय नहीं है, धरती के फ्यूचर के क्लाइमेट चेंज का विषय है, इस पूरी धरती की सभ्यता को बचाने का विषय। और ये केवल आप ये समझिए एनर्जी और टेक्नोलॉजी को बचाने से काम नहीं चलेगा, हमें लैंड डेजर्ट डिग्रेडेशन को भी रोकना होगा, हमें बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना होगा। अभी पिछले दिनों कुछ साइंटिस्ट की रिपोर्ट थी कि टोटल दुनिया में जितने लोग हैं वो अपने फूड, मेडिसिन, ऑयल, कॉस्मेटिक और एनर्जी के लिए 50,000 बायोडाइवर्सिटी के फ्लोरा और फोना का कंटिन्यू कंजम्पशन करते हैं। तो उसका जो सस्टेनेबल लॉस हो रहा है, अभी मॉन्ट्रियल में जो दुनिया ने जो अपने टारगेट तय किए हैं कि धरती में अगर केवल इंसान ही इंसान हो, ना पेड़ हो, ना पौधे हो, ना पक्षी हो, ना जानवर हो, तो कौन इस धरती को अच्छा मानेगा। इसलिए हमारा जो लाइफ का पैटर्न है, प्रकृति के साथ रहने का जो हमारा एक तादम्य है, नेचर के साथ अपने आप को बनाकर रहने की जो हमारी एक अपनी थ्योरी है, वो भी ज़रूरी है। और नई जो टेक्नोलॉजी है उसमें सर्कुलर इकोनॉमी, चीज़ों को वेस्ट ना करके रिसाइकल, रीयूज़ और रीप्रोड्यूस करना। और हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सर्कुलर इकोनॉमी को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले देशों में है। और हमने भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से काफ़ी गाइडलाइन निकाली है, विशेष रूप से रबड़ के रीयूज़ को लेकर के, टायर्स के रीयूज़ को लेकर के, प्लास्टिक बैन करके, प्लास्टिक के प्रोडक्ट के लिए EPR को यूज़ करके, अभी वेस्ट ऑयल जो होता है उसके यूज़ को लेकर के। और हम चाहते हैं कि देश में, आपके यहाँ भी तो बहुत सारा पेपर जो आता है वो रिसाइकल होकर कर ही आता है और दुनिया में अच्छा बनता भी है। हम लोग तो खैर उसका ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रिसाइकल हकीकत है जिस पे हमको जाना पड़ेगा, तभी सब दुनिया के रिसोर्सेज का हम सस्टेनेबल यूज़ कर पाएंगे। बड़ा ही लॉन्ग पेंडिंग इशू है जो इंडिया में चल रहा है, पुलिस रिफॉर्म्स। सर कब वो दिन देखेंगे हम जब हमारी पुलिस इतनी डायनेमिक और इतनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और लोगों के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए, जो लोगों का प्रोटेक्शन उन्हें करना चाहिए, ताकि जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात अभी कर रहे थे, तो काफ़ी जगह वुमेन एम्पावरमेंट में वहाँ पर भी हम फेल हो जाते हैं जब पुलिस की बात आती है। तो वो दिन हम कब देख पाएंगे सर? अच्छा विषय है। और पुलिस जो है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय नहीं है, पुलिस हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का विषय है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अभी पूरा जो हमारा IPC CRPC का विषय है, इसका रिव्यू का काम चल रहा है। और मुझे लगता है सही समय पे जब सरकार की रिव्यू का प्रोसेस पूरा होगा तो ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म भी होंगे। सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक DGP कॉन्फ्रेंस होती है, आपने शायद देखा भी होगा, अखबारों में भी देखा होगा। और उसमें पुलिसिंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पुलिस स्टेट का विषय है और अब पुलिसिंग केवल पेट्रोलिंग नहीं रह गया है, उसमें साइबर भी इन्वॉल्व है, उसमें वाइट क्राइम भी इन्वॉल्व है, उसमें टेररिज्म भी इन्वॉल्व है। ये सारे विषयों को लेकर के आज थ्रेट भी बहुत ज़्यादा नेशंस को है। उसमें अभी जो बीच में बच्चों को लेकर के जो पॉर्न का जो एक बड़ी समस्या है, नेट को विशेष रूप से मैं तो मानता हूँ ये मानव सभ्यता पे बड़ा अभिशाप है, पॉर्न फिल्म्स वगैरह का। तो ये अनेक तरह के डायमेंशन है। पुलिसिंग केवल चोरी पकड़ने का नहीं है, एक सोसाइटी का मॉरल विषय भी है। तो सरकार के द्वारा DGP कॉन्फ्रेंस में इन विषयों का विस्तार से चर्चा की जाती है और हमारे जो नए क्रिमिनल्स लॉ है वो कैसे स्ट्रेंथन हो, इसको एक लगातार रिव्यू गृह मंत्रालय के स्तर पर किया जा रहा है। Thank you, audience, for asking the questions. Now I would request Mr. Pranav Gupta to please come on the stage. सर, प्रगति विचार लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर आप आए,
उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल से सर को आज पहले भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में थे, फिर मंत्रालय के कई कार्यक्रम, एंड सर जो हैं प्योर पार्टी मैन है, स्ट्रैटेजिक थिंकर, और मैंने सर को कई बार सुना भी है और कई बार मिलना भी हुआ जब भी कई अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ही इज़ अ प्योर थिंकर, प्योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, चुनाव की नस नस को जानते हैं। और सर वैसे अब आप, मेरे को पता आपको जाना है, पर मेरा एक आखिरी सवाल है सर। कई बार बीजेपी हम जो नैरेटिव एक नेशनल लेवल पे सेट कर पाती है, हम उसको स्टेट इलेक्शंस में नहीं परिवर्तन कर पाते। हमने बंगाल में नहीं वो चीज़ देखी, पंजाब में देखा, और यही इस तरह का इशू हमें 3-4 और भी स्टेट्स में रहा। वहाँ ऐसा क्यों रह जाता है? और ख़ासकर स्टेट्स लाइक पंजाब एंड बंगाल, दे आर वेरी क्लोज टू बॉर्डर्स, वेरी सेंसिटिव स्टेट्स फॉर सम टाइम। उस पर आपके क्या विचार हैं? कोई भी राइटर हमेशा अच्छा लेख नहीं लिख पाता और हमेशा उसकी किताब हिट भी नहीं होती। ये ऐसा ही है। राजनीति कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मनुष्यों का लोक संग्रह करते हुए लोकतंत्र में भाग लेने का तरीका होता है। तो जहाँ पे हम चुनाव हारते हैं, हमें स्वीकार करने चाहिए कुछ ना कुछ कमियां रहती होंगी, लोगों की अपेक्षाएं रहती होंगी। भारत में चुनाव केवल एक ही तरह से नहीं होता, हमारे चुनाव में कई लेयर्स होती हैं, क्षेत्र भी होता है, जाति भी होता है, एक्सपेक्टेशन भी होती है, इक्वेशन भी होते हैं, वोटिंग पैटर्न भी होता है। तो उन सब विषयों में कहीं ना कहीं कमी ज़्यादा रहती है। और लोकतंत्र में हालांकि हम सत्ता में हैं, लेकिन हम हमेशा रहेंगे तभी रहेंगे जब हम लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे। और अगर चुनाव हारना भी मैं तो कोई बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन हारने से सबक लेकर के आगे हमें बढ़ना चाहिए। और बीजेपी उसी डेमोक्रेटिक पद्धति में विश्वास करती है, इसलिए इसका कोई एक कारण नहीं कह सकते। कई जगह ऐसा भी रहता है, जैसे बंगाल में कभी हमारे 2% वोट थे, हम बढ़ के 18% 2 सीटें थी, 78 हुई। पर अब जो हमेशा टॉप आता है उसको लगता है कि भाई 75 से आपके 72% क्यों आ गए। तो लेकिन कोशिश करेंगे, यही काम कर सकते हैं। सर 2 शब्द हमारे पब्लिशर भाइयों के लिए, सरकार क्या अपेक्षा करती है, कैसे भारतीय प्रकाशक आपके साथ जुड़ सकते हैं, और हम आगे क्या कोई मार्गदर्शन? सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया तो अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बुला करके जो मुझे सम्मान दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पब्लिकेशन का काम एक तरीके से महत्वपूर्ण काम है, और पब्लिकेशन में सीमितता नहीं होनी चाहिए। विचार तो जितने अनेकों तरीके से आते हैं उतना ही समाज समृद्ध होता है। और विचारों की स्वतंत्रता हमने अपने संविधान में भी दी है। और लेकिन पब्लिकेशन जितना ज़्यादा सार्थक होगा, जितना लोगों के अनुकूल होगा, जितना लोगों के दिलों के नज़दीक होगा, उतना ही अच्छा होगा। और इसलिए पब्लिशर्स को कम से कम वो लोग जो सुदूरवर्ती देश में बैठे हुए हैं, जिनके पास नॉलेज है, विज़न है, लेकिन जिनको प्लेटफॉर्म नहीं है, आप उनको वो प्लेटफॉर्म देवें तो अच्छा रहेगा। बाकी सरकार आपकी सेवा के लिए, अपेक्षा के लिए नहीं है। सरकार के लिए कोई भी काम हो बताइए, आपके लिए सरकार हमेशा तत्पर है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।